سحری ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی۔ یہ پروگرام راز طور پر آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آپ ہم سے کسی بھی اسلامی پہلو پر سوالات کر سکتے ہیں، اور سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ ہی کے پسندیدہ عالم دین مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں۔ مفتی صاحب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر وافیت، دعائیں ہیں آپ کی۔ کیسے مزاج ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، خیریت سے۔ ماشاء اللہ۔ آئیے ناظرین، مفتی صاحب سے ہم نے ابھی گفتگو کی اور خیر مقدمی کلمات ہوئے۔ پروگرام کا آغاز حسب روایت قرأت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. قاری خوش الہاں قاری عبداللہ کلیمی صاحب کی قرأت کلام پاک سے ابھی آپ مستفیض ہو رہے تھے. ناظرین محترم، مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وہ واقعہ جس کو شہزادہ حضور فاروق اعظم حضرت العلامہ محمد انوار اللہ فاروقی فضل جنگ علیہ رحمۃ و رضوان کے خاص شاگرد محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب اللہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں نقل فرمائی ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا شخص تھا. رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا ایک لڑکا جو بازار میں دوپہر کے وقت کھا پی رہا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کھا رہا ہے پی رہا ہے رمضان میں، تو اس کو بے چینی ہو گئی اور وہ بچے کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے گھر تک لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو ایسی حالت میں ان کے سامنے کھانا پینا کر رہا ہے، کتنی خراب بات ہے. وقت گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. انتقال ہونے کے بعد کسی مسلمان نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بہت ہی خوبصورت تخت پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، اور پوچھنے لگے کہ اے شخص تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اچانک یہ کیا معاملہ ہو گیا، اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو، میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا، مجوسی تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب میرا انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں دوزخ میں جاؤں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ اے بندے، تو نے ہمارے رمضان کی قدر کی ہے، لہذا ہم تجھے آگ میں جلانا پسند نہیں کرتے، اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کلمہ پڑھ لے ہم تجھے جنت میں داخل کر دیں گے. اور میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا. ناظرین، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ صرف رمضان کی قدر کرنے پر، حالانکہ وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کی پرستش کرنے والا شخص تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ رمضان کی قدر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ انعام اور افضال فرمایا. اور آپ اور ہم اگر رمضان کی قدر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام و مرتبہ ہم کو عطا فرما سکتا ہے. اس کا ہم کچھ بھی حقیقتاً یہ ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس گفتگو کے بعد میں متوجہ ہوتا ہوں آج کے ہمارے مفتی صاحب کی جانب خیر مقدمی کلمات کے لیے. جی مفتی صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، عزیز بہنوں، پیارے بچوں، آج میں اپنی گفتگو کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
कई खसूसियात अता किए थे, जिनमें खसूसियत ये थी कि आपका जिस्म अक़दस, आपका पसीने मुबारका और आपकी आज़ाए शरीफा दुनिया की तमाम खुशबुओं से ज़्यादा खुशबूदार थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने कभी कोई मुश्क, अंबर या कोई खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खुशबूदार हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुज़रते वो रास्ता खुशबूदार हो जाता, और उस रास्ते से बाद में कोई गुज़रता तो आसानी से अंदाज़ा कर लेता कि यहाँ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुसाफा फरमाते तो दिन भर उसके हाथ में खुशबू रहती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बच्चे के सर पर शफक़त से हाथ रखते तो वो बच्चा महक उठता और दूसरे बच्चों के दरमियान में होता तो पहचान लिया जाता कि ये वो खुश नसीब है जिसके सर पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफक़त रखा है। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब अभी गुफ्तगू के दरमियान फरमा रहे थे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर की खुशबू क्या थी। इसी हवाले से एक दो अशार आप समात कीजिएगा कि नाक़िस है हर एक इत्र के बाज़ार की खुशबू, सुभान एक अल्लाह, उनके पसीने में है म्यार की खुशबू। क्या बात। आएंगे मेरी कब्र में जिस दम शहे वाला, महकेगी वहाँ भी मेरे सरकार की खुशबू। सुभान अल्लाह। आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर से हम बात करते हैं, क्या सवाल है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या हाल है? जी, आप सुनाएं क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। देखिए मैं यहाँ हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। जी आदिल साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं कुछ ये तारे के बारे में कुछ सुना हूँ तो वो बिल्कुल सही है या गलत है वो मालूम करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या सुना है आपने? भाई एक मिनट मौलाना जी। सुरैया सितारा के नाम से कुछ तारा आने वाला है जो ये वायरस को खत्म करने वाला है। अच्छा। तो वही जानना चाह रहा था मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, समात कीजिएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम अस्दकुल काइलीन हैं। सुभान अल्लाह। यानी कलाम फरमाने वालों में सबसे ज़्यादा सच बात बोलने वाले, सबसे दुरुस्त बात बोलने वाले और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम कौल रसूल करीम अलैहिस्सलाम का। अब रही बात जिस हदीस के तनाजुर में आज हमारे दरमियान गुफ्तगू हो रही है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से मुख्तलिफ़ लोगों के मोबाइल फ़ोनों में मौजूद है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ, वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अक़वाल का ख़ुलासा है। वो क्या है? ला अदवा वला तियरता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई उसमें सारे अवहाम का खात्मा, किसी भी चीज़ में फ़ी नफ्सी ही कोई तासीर नहीं होती। अल्लाह मुअस्सिर है। अल्लाह कभी कभी कोई असबाब ज़ाहिर करता है और उसी तनाजुर में वो गुफ्तगू है। खुलासा कलाम यह है कि आप हरगिज़ ये तसव्वुर न करें कि कोई तारा अपने तौर पर कारसाज है। हाँ, अल्लाह जिससे चाहे काम लेता है। जैसे अल्लाह बारिश बरसाने का काम, ज़राअत और खेती उगाने का काम मिकाईल अलैहिस्सलाम से लेता है, जिस तरह अल्लाह ताला रूह कब्ज़ करने का काम
इजराइल अलैहिस्सलाम से लेता है, जिस तरह अल्लाह ताला सूर फूंकने का काम इसराफील अलैहिस्सलाम से लेता है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का खासा है, जिससे चाहे वो जो काम ले। लेकिन हम अपनी चीज़ों में, अल्लाह की मखलूक में कोई असर को फ़ी नफ्स ही तसव्वुर न करें। अपने अक़ीदे को पाक और साफ़ रखिए, और ऐसा भी न करिए कि कोई बात को इस कदर आपने आगे बढ़ा दी, दुनिया वालों के सामने उस बात से हमारी जग हंसाई की नौबत आ गई हो। क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कोरोना वायरस के तनाजुर में नहीं है, एक आम बात है, और वो लाजिमी हवाले से नहीं कहा गया कि लाजिमन ऐसा हो सकता है। अल्लाह को इख्तियार है, चाहे हो चाहे ना हो, और ऐसा हो भी सकता है। और हमने ये बात इस तरह शोहरत दे दी, दुनिया वालों ने उस बात को नबी के कौल के तौर पर कबूल किया, और अल्लाह न करे वला कद्दर अल्लाह ये सिलसिला जारी रहा तो लोग हंसेंगे नहीं हम पर। तो हमको चाहिए कि हम अपने कौल में, अपनी बात में, अपनी फिक्र में इस्लाम के मिजाज की पासदारी करें। हम सबब पर नज़र नहीं रखते, हम मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखते हैं। हम अशिया में तासीर नहीं ढूंढते, अशिया के खालिक को हम मुअस्सिर समझते हैं, अल्लाह को हम मुअस्सिर समझते हैं। जी, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी बात कही गई है कि एक मोमिन कामिल, एक मुसलमान की कैफियत ये होती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला यानी कि मुसब्बिबुल असबाब की तरफ नज़र रखता है, न कि असबाब की तरफ। आइए इस बातचीत के बाद शामिल करते हैं एक और कॉलर को, जानते हैं एक और सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? जी मैं शिराज अहमद बोल रहा हूँ मेहदीपट्टनम से। जी शिराज साहब, क्या सवाल है जी आपका? साहब, मेरा एक पर्सनल सवाल हमारे मौलाना साहब से करने का है। हाँ जी ज़रूर। जी, मेरे वाइफ 2014 से मेरे से अलग है। जी, तो अब तक आयर नहीं, उन्होंने फिर कोर्ट में भी चले गए हैं, कोर्ट में केस डाल दिए हैं, बच्चे उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। मैं मुतअद्दिद बार उनसे क्या करा मालूम भी है, रिक्वेस्ट भी किया हूँ, अपने तरफ से कोशिश किया हूँ मैं, मेरे बड़े भी जाके समझाए हैं, हर तरीके से आने की कोशिश किया हूँ मैं, मगर उनके घर वाले कुछ ना समझी हरकतें करके क्या कर रहे हैं मालूम भी। आज 5 साल का वक्त हो चुका है, उन्होंने मेरे से अलग हो चुके हैं। तो मैं मौलाना से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं दूसरा निकाह कर सकता हूँ क्या? जी ठीक है शिराज साहब, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, वो ये कि जो अपने जो पर्सनल मैटर्स है, जहाँ पे इख्तलाफात और इंतशार की बात हो, उसको जो है वाज़ेह तौर पर बयान न करें, बल्कि अगर आप इसी सवाल को अगर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा। इस तरीके से सवाल करना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी जो खामियां हैं, आपकी जो बुराइयां हैं वो मंजर आम पे आ जाएं, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है, इस चैनल के ज़रिए से हज़ारों लोग इसका मुशाहिदा करते हैं और इस्तेफ़ादा करते हैं, और उनकी मालूमात में आपकी जो है खामियां भी आ सकती हैं, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पहली बात तो जिस गुफ्तगू को आपने मौलाना आगाज़ किया, मैं उसकी तायीद भी करता हूँ, तौसीक़ भी, और बरहक़ बात यही है कि अवामी प्लेटफार्म से हम जब बात करेंगे तो इस बात का लिहाज रहे कि वो बात सत्र में रहे और बात हो जाए। ज़ाहिर है कि शैतान वो इंसान के साथ हमेशा लगा है, और शैतान की शैतानत वो कभी रुकने वाली नहीं है, वो बंदों को हमेशा उलझाता रहता है। बसा औक़ात वो कामयाब हो जाता है और अक्सर नाकाम रहता है। आपके केस में शैतान कामयाब हो गया है, नाकाम न आप हैं न आपकी अहलिया हैं, बल्कि कामयाब शैतान हैं। फिलवक्त सूरत हाल ये है कि 2 फरीक अदालत में जाएंगे तो एक कामयाब होगा, एक नाकाम होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों भी कामयाब होकर कोई भी कामयाब नहीं है, कामयाब तो सिर्फ शैतान ही है। शैतान को नाकाम करें। आपने बहुत अच्छी बात की कि सुलह की कोशिश की, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्सुल्हु खैर, यानी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो सुलह ही बेहतर बात है। अब रही बात बच्चों की कफालत वगैरह का मामला कि बच्चे किसके पास रहेंगे, तो ये भी मसला भी
हम जाने बगैर नहीं बता सकते कि उन बच्चों की उम्रें क्या है, नौइयत क्या है, बच्चा बच्ची दोनों के मामलात अलग हैं। तो अगर कभी इनफरादी तौर पर कोई रास्ता निकलता है तो फिर कोशिश करेंगे आपके मसले को हल करने की। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन साहब जो जामिया निज़ामिया के मुमताज़ आलिम दीन हैं, वो भी बहुत बेहतर काउंसलिंग करते हैं इन मामलात में, तो आप उनसे भी रुजू हो सकते हैं। दोनों फरीक़ों से वो राबता करेंगे, फिर मसाइल को हल करेंगे। देखिए, कोर्ट और कचहरी क्या कर सकती है, जो काम असल करने के हैं वो ये कि हम अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें, और गुंजाइश पैदा करके अपने लाए अमल को इस्लाम के मुताबिक बना लें, तो फिर मसले हल हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहरहाल उस खुशी को वापस लाए जिसकी आप मुतलाशी हैं, और ज़ौजैन को अल्लाह दोबारा मिला दे, हमारी यही तमन्ना है। अब रही बात निकाह के सिलसिले में, अब वो एक अलग मसला है, ये जो इख्तिलाफात हैं ये अलग मसला है। इस सिलसिले में आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे एक भाई के सवाल और जवाब के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। क्या सवाल है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाबी अली, कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी, मैं अब्दुल मलिक बात कर रहा हूँ माता टैंक से। जी, तो मेरा ये सवाल ये था कि थोड़ा सा लाउडली बात कीजिए आप। जी, मैं अब्दुल मलिक बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल मलिक साहब, क्या सवाल है आपका? माता टैंक से। हेलो, हाँ सवाल बताएं। जी जी, सवाल ये है कि ये जैसा अपन इंफरादी अगर से अपन नमाज पढ़ रहे हैं, जैसा घर पे या कहीं मस्जिद में भी अगर से जमात हो गई और उसके बाद अगर से हम अकेले अलग पढ़ रहे हैं, तो अकामत देना जरूरी है या बगैर उसके भी हम नमाज पढ़ ले सकते हैं? ठीक है, जमात के साथ अगर से हम नहीं पढ़ रहे तो वो एक सवाल था आपसे। जी। और दूसरी बात ये थी कि भाई मेरे यानी कि हमारे तरफ से तो 4TV की टीम को और आपको और मुफ्ती साहब को रमजान मुबारक। जी शुक्रिया और बहुत बहुत। खैर के लिए तो, और ये जो वबा है वबा के लिए तो ये खात्मे के लिए बस दुआ फरमाइए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपके एहसासात को कबूल करे और तमाम इंसानों के एहसासात को अल्लाह कबूल करे, वबा टल जाए। अल्लाह रहमान है और सिफत रहमत का खासा ये है कि वो गुनहगारों पर भी रहम करता है, नेकोकारों पर भी रहम करता है। बेशक सही। तो हमारी अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीदें हैं, अल्लाह इंसानियत से इस वबा को टाल दे। मेरे प्यारे भाई, आपका सवाल तन्हा नमाज के बारे में है कि आप बिल्कुल तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। तो इकामत उस वक्त कही जाती है जब जमात खड़ी हो, और अगर तन्हा नमाज पढ़ते हुए भी इकामत कही जाए तो बाइस सवाब ही है और दुरुस्त जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। आप तन्हा नमाज पढ़ते हुए भी इकामत कह सकते हैं, शरई इजाज़त है। जी, मुफ्ती साहब ने जवाब के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, वो ये कि जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गुनहगारों पर भी है और नेकोकारों पर भी है। इसी हवाले से मुझे याद आती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या अल्लाह तआला की रहमत सिर्फ नेक लोगों पर है या गुनहगारों पर भी है? तो इत्तेफाकन उस वक्त बारिश हो रही थी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 बर्तन मंगवाए। एक बर्तन साफ़ सुथरा था और दूसरा परागंदा था। आपने उन दोनों बर्तनों को बारिश में रख दिया। कुछ देर बाद दोनों बर्तन भर गए। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि कज़ालिका रहमतुल्लाहि तउम्मुत ताइआ वल आसी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी ऐसी ही है जो गुनाहगारों को भी मिलती है और नेक लोगों को भी मिलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वाकई बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसी कैफियत है अल्लाह ताला की रहमत में कि अल्लाह तबारक व तआला उसमें सिर्फ किसी को ख़ास नहीं फरमाता है, बल्कि हर एक को दी जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब अली, कौन कहाँ से? जी मैं शोएब बोल रहा हूँ हाँ संतोष नगर से। जी शोएब साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि तरावी जब घर पे पढ़ते हैं ना, तो
اب کسی کو قرآن کی آیت جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہتے، کسی کو یاد رہتے، تو وہ ہم لوگ گھر پہ کیسا پڑھے یا آن لائن پڑھ سکتے کیا؟ یہ سب پوچھنا تھا بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں، بہت سے لوگوں کے خیال میں ہے کہ کیا تراویح آن لائن پڑھی جا سکتی ہے. دیکھیے، امام اس کے پیچھے مقتدی، ان دونوں کے درمیان اتصال صفوف ضروری ہے، صفیں مل کر رہیں. ایسا نہیں کہ امام صاحب اکیلے دیوان خانے میں ہیں اور مصلی اقتداء کرنے والے دوسرے روم میں ہیں. آج کل آڈیو سسٹم تو اویلیبل ہے، آپ نے آڈیو کا انتظام کر دیا اور ادھر وہ پڑھا رہے ہیں ادھر. ایسا نہیں ہوگا، مسلسل ہونی چاہیے. اور قرآن تراویح کے حد تک محدود نہیں ہے. اگر آپ تراویح میں کوئی حافظ قرآن کو نہیں پاتے ہیں تو آپ جماعت سے ضرور پڑھیے، علم ترا سے والناس تک پڑھ لیجئے، لیکن جب آپ تراویح کے بعد وقت پائیں تب قرآن پڑھ لیں، یا پھر آپ حرمین کی قرأت کو، تلاوت کو سن لیں، یا ہمارے حیدرآباد کے ممتاز قراء ہیں ان کی قرآن کو، ان کی تلاوتوں کو آپ سنیں. آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پہلے تو بہت مشکلات تھی، اب تو آسانی ہے. قرآن کو آپ ضرور سنیے اور قرآن کو خوب تلاوت کریے، لیکن قرآن کو تراویح کے اندر محدود مت کیجیے. اور قرآن غیر محدود ہے، تراویح کے اندر محدود نہیں ہے. تو محض تراویح کے اندر بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، کیا آن لائن پڑھا جا سکتا ہے؟ سوالات آتے ہیں. جی ہاں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے قرآن سے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. ہماری کشمکش جو ہے، قرآن سے ہماری جو محبت ہے، قرآن چھوٹنے کا جو احساس ہے، وہ احساس ہمیں اس طرح کی باتوں کی طرف لاتا ہے. آپ کی بات پر مجھے تنقید کرنی نہیں ہے، اس سے آپ کا جذبہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن سے آپ جڑنا چاہتے ہیں اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹے نہیں، اس کے لیے آپ کوشاں ہیں. لیکن ہم کام اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی سے کریں گے. جی، ہمارے بھائی نے بہت ہی خوبصورت حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت ہی اچھا سوال کیا تھا، خوبصورت سوال کیا تھا، اور مفتی صاحب نے بھی بہت ہی عمدگی سے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد پرویز ہے، میں عمر پیٹ سے بات کر رہا ہوں. جی پرویز صاحب، آپ کو مفتی صاحب کو رمضان مبارک. جی بہت شکریہ. جی میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، 3 سال ہوا. شمیم بیگم نام ہے، بس ان کے لیے دعا کرنے کا تھا. اب لاک ڈاؤن ہو گیا، میں قبرستان کو بھی نہیں جا سکتا ہوں، پھولا بھی نہیں چڑھا سکتا ہوں ان کو میں. بس اب میری بس یہ گزارش ہے، بس میرے والدہ کا نام شمیم بیگم ہے، بس ان کے لیے دعا کریجیے. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میرے کو قرآن پڑھنے نہیں آتی مفتی صاحب، تو میں تراویح پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ پڑھتا ہوں، خلدہ انا تینا پڑھتا ہوں، بس یہ 2 سورے آتے میرے کو. اچھا، تو ایسے پڑھ کے میں قرآن تراویح پڑھتا ہوں پورے 20 رکعت، تو قبول ہو سکتی کیا بول کے یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ. 3 سورے آتے ہیں میرے کو، بس وہ 3 سورے پڑھتا ہوں. چلیے بھائی، جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے جنت المعلی میں. رہی بات آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، محض قبر پر جانا یا محض پھول چڑھانا ہی نہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، غریبوں میں کھانا کھلا کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ کو صرف 3 سورے آتے ہیں، آپ نے وہ 3 سورے نہیں گنائے. ایک تو سورہ فاتحہ، انا آتینا، اس کے بعد اور ایک کون سا سورہ ہے آپ کا، وہ دیکھ لیجئے. قل واللہ بھی شاید کہا انہوں نے. اچھا، اگر ایسا ہے تو پہلے تو آپ اتنی سمجھ بوجھ کی گفتگو کر رہے تھے، سوال آپ نے اتنا اچھا کیا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن بالکل تازہ ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو 10 سورے تو آپ ایک دن میں یاد کر لیں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اب آج میری گفتگو سننے کے بعد شروع کریے، انشاءاللہ فجر تک بھی آپ یاد کر لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زیادہ مشکل نہیں ہے. البتہ فی الوقت آپ ایسا کریں، سورہ فاتحہ کے بعد پہلے رکعت میں انا آتینا، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد،
اس طرح ہر 2 رکعت پلٹا پلٹا کے یہی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تراویح قبول ہو جائے گی، لیکن 10 سورے کم سے کم ضرور یاد کر لیں۔ جی، بہت ہی اچھی جانب توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم 10 سورے یاد ہونے چاہیے۔ اس گفتگو کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ایک اور کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دے بھائی۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آپ کو بے حد رمضان کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں پہلے تو میں۔ جی بہت شکریہ۔ جی، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، میں عادل بات کر رہا ہوں حیدرآباد بابا نگر سے۔ جی عادل صاحب۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، اب تو فی الحال مسجد میں تو نہیں پڑھ سک رہے اپن، لیکن یہ گھر میں جب اپن نماز پڑھتے تو جو سو اپنی والدہ ہے، اہلیہ ہے، ان کے ساتھ بھی جماعت بنا کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اور کون لوگ پڑھنے والے؟ اور کون کون لوگ ہیں آپ کے ساتھ پڑھنے والے؟ میری والدہ ہے، اہلیہ ہے۔ بچے وغیرہ بھی ہیں آپ کے؟ بچے چھوٹے ہیں ابھی۔ آپ کے برادران وغیرہ ہے، بھائی وغیرہ ہیں آپ کے؟ بھائی اپنے ان کے گھر کے اپنے پاس نہیں رہتے۔ آپ کے گھر میں جو ہے صرف اتنے ہی لوگ ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دیں گے۔ وقت ہے درس تجوید کا، مشاہدہ کیجیے، کچھ دیر کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میرے مولا کرم ہو کرم۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی جانب، کیا سوال ہے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں شادی بنگے۔ جی احمد، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں 2 سوال تھے۔ 2 سوال ہیں آپ کے؟ جی ٹھیک ہے، پہلا سوال کیا ہے بتائیے گا۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سر پر پیاز کا رس لگا سکتے ہیں؟ اصل میں میرے بال جھڑتے اس لیے میں پیاز کا رس لگا۔ اچھا، پیاز کا رس، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، گھر میں اور میرے والدہ رہتے بس، تو میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں اور تراویح بھی پڑھاتا ہوں، تو اقامت کون دینا؟ اچھا، یہ ایک مسئلہ تھا۔ ممی دے سکتے کیا؟ اچھا، سلاد دے سکتے کیا گھر میں؟ یہ تو تراویح کے بعد سلاد دیتے ہیں وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ دیکھیں اس سلسلے میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ اور آپ کی والدہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، آپ امامت کریں گے، والدہ پیچھے کی صف میں کھڑی ہوں گی۔ خواتین کے لیے یہی بات زیادہ مستحب ہے، مستحسن ہے کہ وہ اپنی آواز پست رکھیں۔ اب یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی غیر محرم بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرے ہیں، تاہم ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اورات کے سلسلے میں، ادعیہ کے سلسلے میں خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں، یہی بہتر ہے۔ پیاز کا رس، آپ کا یہ نسخہ آپ نے کسی حکیم صاحب سے، جو واقعی مجرب بات ہے، تو پھر مولانا کے علم میں ہے کہ واقعی پیاز کے رس سے ایسا ہوتا ہے کہ بال سر کے جی بڑھتے ہوں، واللہ عالم، کیونکہ پیاز میں بظاہر مزاج کے اعتبار سے جی ترشی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سن کے کوئی عمل کریں اور ان کے بال واپس آنے کے بجائے جانے کی طرف مائل ہو جائے، الٹا نقصان ہو جائے۔ تو عادل کیا نام کہا آپ ان کا؟ کوئی بات نہیں۔ تو آپ روزے کی حالت میں سر پہ تیل لگانے کی اجازت ہے، تو وہ پیاز کا عرق بھی آپ لگانا چاہیں تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم آپ غور کر لیجئے آپ جو لگانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ عادل صاحب نے ایک سوال وقفے سے پہلے کیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی والدہ ہیں اور ان کی اہلیہ ہیں، وہ تراویح کی امامت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عادل صاحب آپ نماز پڑھائیے، آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کی اہلیہ یہ دونوں پیچھے کی صف میں کھڑی رہیں گی۔ آپ نے کہا کہ کوئی اور آپ نہیں ہیں،
तो ये दूसरी सफ़ में रहेंगी, आप नमाज पढ़ाएं, इंशाअल्लाह ताला ये नमाज भी हो जाएगी। और ये अच्छी बात है कि घर जोड़ रहे हैं इबादतों के सिलसिले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। जी हाँ, अभी आपने कहा था ना कि कोई शर में भी खैर का पहलू होता है। बेशक सही है। आइए एक और कॉलर हमसे बात करने के लिए मुंतज़िर है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं साहब मुमताज कॉलोनी मुफ्ती दरवाजे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नाम बता सकते हैं आपका? जी साहब, वो गुजारिश ये थी कि जो है अपन इफ्तार के टाइम पे जो है तोप छोड़ते थे ना, तो इसके ऊपर जो है कल नहीं छोड़े, वो ये डिश है मेरे पर लगा हुआ टाटा का। जी, क्या किस चीज के छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वो तोप जो है रोजा खोलने के टाइम पे छोड़ते हैं ना, 4th चैनल के ऊपर अपन। तो सायरन की बात कर रहे हैं क्या आप? जी, सायरन की बात कर रहे हैं? हाँ, सायरन बजते होकर जब तोप छोड़ते थे ना। जी जी, ठीक है, तो समझ गया। नहीं है, अगर मेहरबानी इसमें भी करे तो रोजा खोल ले सकते हैं, बाद का सायरन की आवाज नहीं आती है। अच्छा, सायरन की आवाज नहीं आती है आपको? क्या नाम? जी जी। आपका नाम क्या है भाई? मेरा मुजीब खान है साहब। मुजीब साहब, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए मुजीब साहब, एक बात तो बहुत अच्छी है कि आपकी निगाहें मुसलसल 4 TV की तरफ हैं माशाल्लाह, और हमारे जो टेक्निकल टीम हैं, एडिटर्स हैं, वो कोशा रहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी से अच्छी बने, तो वो तोप छोड़ी जाती है। ठीक है ये बात, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि ऐन इफ्तार के वक्त आप अपनी निगाहें अपनी हथेलियों पे रखिए, अपने सामने रखिए और नीचे रखिए, दुआ करिए, और टाइम को आप घड़ी के साथ और सायरन के साथ मिला के देखिए, क्योंकि बसा औकात अजान या सायरन पहले भी हो सकता है। तो अपने रोज़े का क़ियाल आपको खुद करना है। खैर ये लोग भी करेंगे, तोप अगर नहीं आई है तो आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, उसका इंतज़ाम हो सकता है तोप का। लेकिन असल मसला आप उन औकात में जो प्रोग्राम देख रहे हैं इफ्तार टाइम, वो देखिए, उसके बाद फिर अपनी दुआओं में मसरूफ़ रहिए। अल्लाह ताला आपकी और हमारे रोज़ों को और इबादतों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। एक और कॉलर से हम बात करेंगे, क्या सवाल है जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं हनीफ बात कर रहा हूँ चंद्रायन गुट्टे से। जी हनीफ साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? जी, मुझे पूछना ये था कि हम जो ये फर्ज नमाज पढ़ते हैं जोहर की या ईशा की, तो फर्ज में हम सना पढ़ लेते हैं जी, उसके बाद फिर जब हम सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं तो फिर सना पढ़ना चाहिए नहीं, हम सीधा आलम का थोड़ा स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ साहब, चाहे आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, चाहे वाजिब पढ़ें, चाहे सुन्नत पढ़ें, चाहे नफल पढ़ें, नमाज कोई भी आप पढ़ें, पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ना सुन्नत है। आप लाजिमन पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, फ़र्ज़ में भी पढ़ें, वाजिब नमाज में भी पढ़ें, सुन्नत नमाज में भी, नफल नमाज में भी। नमाज अगर सुन्नत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बाज़ चीज़ें कम हो गई। नमाज अगर नफल है तो उसमें भी ये नहीं है कि कोई चीज़ कम हो गई। नमाज का पूरा तरीक़ाकार वही रहेगा, हाँ उसका दर्जा अलग है। और फ़र्ज़ नमाज में तो पहली और दूसरी रकत में आपको सूरह फातिहा के बाद ज़म्मे सूरा पढ़ना है, और 4 रकत वाली नमाज़ों में तीसरी और चौथी रकत में आपको फ़र्ज़ नमाज़ों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, जबकि आप सुन्नत पढ़ रहे हैं 4 रकात, चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद आपको ज़म्मे सूरा भी पढ़ना है। जी, फ़र्ज़ सुन्नत नमाज के मुतालिक अभी आपने एक सवाल का जवाब हासिल किया। आगे बढ़ेंगे, एक और कॉलर की जानिब बात करेंगे, सवाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से? जी मेरा नाम फ़हीम है, मैं मुशीराबाद से बोल रहा हूँ। जी फ़हीम साहब, क्या सवाल है आपका? जी हम लोग, देखिए आपने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की, आपको भी दुश्वारी है, हमें भी दुश्वारी है। तब मैं सऊदी अरब में था 5 साल, मक्का में। जी। वहाँ पर अकामत के लिए 2 बार तकबीर होती थी, अब यहाँ पे 4 बार होती। इसके वास्ते मेरे को कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, हम आपकी बात समझ चुके हैं, लेकिन हमारे कॉलर से हम ख्वाहिश करेंगे कि जब कभी कॉल लग जाए आप अपनी टीवी की आवाज़ या तो बंद कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए, यह ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको और हमको दोनों की भी किसी किस्म का कोई खलल न होने पाए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपको यहाँ 4 मरतबा तकबीर सुनने का मौका मिल रहा है, अब फिर पलट के आप वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ 2 मरतबा ही होगी। बात सऊदी अरब की नहीं है, बात हैदराबाद की नहीं है, बात आप कि अगर आप 2 मरतबा ही सुनना चाह रहे हैं, आप जाइए बारकस जामे मस्जिद में, आपको वहाँ 2 मरतबा मिल जाएगी। ये मसला है फ़िक़्ह के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान। फ़िक़्ह हनफ़ी में इक़ामत जो कही जाती है उसमें ताअद्दुद है, 4 मरतबा तकबीर कही जाती है, उसके बाद 2-2 मरतबा कही जाती है। इसके बरखिलाफ़ शवाफ़े के पास और हनाबिला व मालिकिया के पास इस सिलसिले में तरीक़ेकार अलग है, चूँकि सऊदी अरब में जो सरकारी तौर पर जिस मसलक पर अमल होता है वो हम्बली मसलक है, तो उसका वहाँ एतबार ज़्यादा होता है। तो इसमें आप परेशान न हो, आप पहले अपना तयन करिए कि आप क्या हैं। आप हनफ़ी हैं, आप शाफ़ई हैं, आप अपने आप को मुतय्यन रखिए, वरना ये होगा कि आप ज़माना घूमता रहेगा, फिर आप भी घूमते रहेंगे, कोई एक चीज़ तय नहीं होगी। अपने आप को मुतय्यन करिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी के रोज़ व शब को आगे बढ़ाइए, इंशाअल्लाह बरकत हासिल होती रहेगी। जी, अभी आपने इक़ामत से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब हासिल किया। कॉलर हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से? हेलो। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप बताइए, हम सुन रहे हैं। हेलो। हाँ जी बताइए, थोड़ा लाउडली बात कीजिए, हम सुन लेंगे। मैं एरागड्डा से बात कर रहा हूँ साहब। हाँ जी, क्या सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपको इतना बड़ा कंफ्यूजन माफ़ कीजिएगा भैया, आपकी आवाज़ हम सही तौर पे सुन नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए हम आपके सवाल के जवाब को जब सुन ही नहीं पा रहे हैं तो जवाब भी नहीं दे सकते। आप दोबारा फिर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह शायद अगर कॉल लग जाए और बात हो जाए तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए बात करते हैं, क्या सवाल है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। दोबारा फिर से खलल हो रहा है। मुफ्ती साहब आपने, जी अस्सलाम वालेकुम, शायद राबिता ठीक तौर पे हो नहीं पा रहा है। मुफ्ती साहब आपने इफ्तिताही कलिमात के दरमियान में एक यानी रहमत के मुतालिक गुफ्तगू फरमाई, हम चाहेंगे कि उसके मुतालिक और थोड़ा सा वजाहत फरमा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात हमारे लिए और तमाम इंसानों के लिए बज़ाहिर परेशान कुन हैं। वायरस की वजह से, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हो रहा है और नौबत यह है कि लोग मसाजिद के बजाय घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। यही हाल दीगर मज़हब के मानने वालों का है कि उनके पास भी मंदिरों में, चर्चों में सब पाबंदी आए थे। अब यहाँ पलट कर हम गौर करें कि हालात अगर इस रुख पर हैं तो इसमें हमारे लिए इबरत का सामान क्या है। देखिए, अल्लाह कारसाज है, कादिर है, तमाम तरह का इख्तियार रखता है,
پھر اللہ کا صفت جلال محشر میں ظاہر ہوگا. اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے صفت جلال کا محض ایک پرتو دیکھ رہے ہیں. وہ جو قیامت کے بارے میں کہا گیا کہ یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا. کس سے بھاگے گا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں سے. نہ بیٹے کو ماں سے تعلق رہے گا، نہ ماں کو بیٹے سے، نہ بھائی کو بھائی سے تعلق رہے گا، نہ ایک کو دوسرے سے. سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. تو اب وہ منظر جو ہے آج اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو ان حالات میں ہماری امیدیں یہ ہیں کہ اللہ جلد سے جلد اس وائرس کا خاتمہ کرے گا، کیونکہ اللہ رحمان ہے. ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے. اور رحمان کا مطلب وہ ہستی جو گنہگاروں پر بھی رحم کرتی ہے اور نیکوکاروں پر بھی رحم کرتی ہے. رحمان کا مطلب وہ ہستی جس کی رحمت تمام انسانوں پر عام ہے، چاہے وہ توحید کے ماننے والے انسان ہو، چاہے وہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے انسان ہو. تو جب اللہ رحمان ہے پھر اللہ کفیل بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کفیل المسلمین ہے، سب کا کفیل ہے، سب کا وکیل ہے. تو ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اور یہ وبا انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے مفتی صاحب نے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک اور کل ہمارے ساتھ ہے، بات کرتے ہیں، سوال جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ استخارہ کی جو نماز ہے تو مطلب کیا ٹائم پہ پڑھنا؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا وقت پہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی مطلب 3 بجے پڑھ سکتے ہیں، 3-4 بجے کے ٹائم. دوپہر میں؟ نہیں رات کے ٹائم. رات میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. دیکھیں اس سلسلے میں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں استخارے کو پسند فرماتے تھے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اسوہ نبوی کو اپنی زندگی میں شامل کریں. نماز استخارہ عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہی اس کا بہتر وقت ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی نماز پڑھیں گے، پھر وہ دعا کریں گے، دعا استخارہ، جس میں اللہ سے آپ دین اور دنیا کی بھلائی مانگیں گے. اس کے بعد بزرگوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کیے بغیر اپنے بستر پر دراز ہو جائیں اور سو جائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے خواب میں رہنمائی کر دی جائے گی، اور اگر پہلی مرتبہ ایسا کرنے سے رہنمائی نہیں ہوئی ہے تو پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اس طرح 7 دن مسلسل آپ یہ عمل کرتے رہیں. اگر پہلے رہنمائی ہو جائے تو اس پہ عمل کر لیں، ورنہ 7 دن کے بعد ضرور رہنمائی ہوگی، اور آپ کا دل یا تو اس کی طرف مائل ہوگا یا اس چیز سے ہٹ جائے گا، یا پھر خواب میں اس کا اشارہ آپ کو دے دیا جائے گا جس کو آپ سمجھ کر اپنے مطابق عمل کر سکتے ہیں. جی تو عشاء کے بعد پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب یہ نماز استخارہ کے متعلق یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب بندہ جو ہے نماز استخارہ کرنے کے بعد سو جاتا ہے تو اس کو بذریعہ خواب رنگ بتلایا جاتا ہے، یا ہرا رنگ یا لال رنگ، اس قسم سے کوئی جو ہے رنگ بتلایا جاتا ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اصل بات محض رنگ تک محدود نہیں ہے. جی ایک تو یہ کہ رجحان قلب ہے، جی، دوسرا یہ کہ رنگ ہے، تیسرا یہ کہ جانور ہیں، جی، چوتھا یہ کہ پانی وغیرہ ہے. یعنی خواب تو ایک وسیع عمل ہے. جی جی. تو اس میں وحشت یا برکت وہ سب چیزیں مفہوم ہوتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں. جی. تو مختلف چیزیں ہیں جو خواب کے ذریعے بتائی. جی. ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ جانور بھی بتلائے جاتے ہیں، اسی حوالے سے پھر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر حلال جانور بتلایا جائے تو اس معاملے کو جو ہے یعنی کہ خیر سے جوڑنا چاہیے، اور اگر حرام جانور بتلایا جائے تو اس کو شر سے جوڑنا چاہیے. دیکھیے خواب کی ایک طرفہ نوعیت کی ایک بات ہے یہ. جی. اب
अगर कोई घोड़े पर सवारी कर रहा है तो अब घोड़ा तो हलाल नहीं है जी, लेकिन उसकी ताबीर हाँ की है जी। अच्छा, माशाअल्लाह। तो इस तरह से ख्वाब एक बिल्कुल एक वसी अमल है, वसी मैदान। तो उस नौइयत के एतबार से जी, और उसकी बात मुताहक़्क़ होती है कि पहले सवाल क्या आएगा फिर जवाब होगा। जी, जी। तो उस जवाब को हम महदूद नहीं कर सकेंगे जी, एक चीज़ तक। बिल्कुल वजह फरमाया मुफ्ती साहब ने कि ख्वाब एक वसी अमल और वसी कैफियत का नाम है, उसके मुतालिक कोई हतमी और ख़ताई बात नहीं की जा सकती है। इस गुफ्तगू के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब, एक और सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल बताइए आपका। हेलो। हाँ जी, कितनी मरतबा हेलो कहेंगे आप? आगे बढ़िएगा। मेरा नाम शेख आरिफ है। जी आरिफ साहब, सवाल बताइए। ये गरीब बहन आ रहे तो ज़कात दे सकते क्या, ये मालूम करना था मुफ्ती साहब। अच्छी बात है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़कात, जहाँ तक ज़कात का मामला है, आप अगर ज़कात दे रहे हैं तो अव्वलीन रिश्तेदार यानी अव्वलीन हकदार करीबी रिश्तेदार होते हैं, और करीबी रिश्तेदारों में सबसे पहला नंबर भाइयों और बहनों का ही आता है। पहले आप ये समझ जाइए कि ज़कात किसको नहीं दी जा सकती। माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती, औलाद अपने माँ बाप को ज़कात नहीं देंगे, इसी तरह दादा दादी को नहीं, परदादा परदादी को ऊपर तक नहीं। माँ बाप अपने बेटा बेटी को ज़कात नहीं दे सकते, अपने पोता पोती नवासा नवासी को नीचे तक ज़कात नहीं दे सकते। शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। माँ बाकी आप अपनी ज़कात अपनी बहनों को दे सकते हैं, भाइयों को दे सकते हैं, चचाओं को, खालू, जितने करीबी रिश्तेदार हैं सबको आप दे सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में दो बातें देखनी है। एक तो ये कि वो मोहताज और ज़रूरतमंद हो, और ज़कात के सिलसिले में ये बात भी आपके पेश नज़र रहे, बनु हाशिम को रसूल करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से ज़कात नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको पाकीज़ा और अच्छा माल दिया जाएगा। चूँकि ज़कात माल का मैल है और ये बनु हाशिम को, खानवादे रिसालत को, अहले बैत को नहीं दिया जा सकता, इसलिए अगर आपकी का ख़ानदान सैयद है तो आपकी बहनें भी सैयद होंगी, तो ये सैयद होने की वजह से नहीं देंगे, उनको पाकीज़ा माल में से दें। अब ये सवाल का जवाब ज़रा मुश्किल है। ज़कात 2.5% है, 97.5% आपके हाथ में। 1% सादात के लिए मुख्तस कर दीजिए, 1% सिर्फ। आप 2.5 के बजाय 3.5% दीजिए, 2.5 ज़कात के मुस्तहिकीन को दीजिए और 1% सादात के लिए। अगर आप 1% अपने सादात के लिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत का पासो लिहाज रखते हुए मुकर्रर करिए, आप खुद देखेंगे कि आपके माल में अल्लाह बरकत देगा। गैब से अल्लाह ताला आपके लिए खजाने खोल देगा, क्योंकि आपने उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानवादे के लिए एक अमाउंट फिक्स किया है। अगर एक नहीं कर सकते, 0.5 इतना करके देखिए, आजमाइए एक मरतबा। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बात कही है मुफ्ती साहब ने कि सादात जो हजरात हैं उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ मुकर्रर करना चाहिए जो ज़कात का हिस्सा न हो। इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर से हम बात करते हैं, सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से? जी, मैं वट्टापल्ली से जी खुशतर जहाँ बोल रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगी बहन? मित्री पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल खुशतर जहाँ वट्टापल्ली। जी, खुशतर जहाँ साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मेरी वालिदा का इंतकाल होके 2 महीने हुआ है और मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही। मुफ्ती साहब से कहना है कि कुछ पढ़ने के लिए जी, क्योंकि मेरे को सब्र नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरी मांग के लिए। और दूसरी बात ये है कि
میرے بیٹے کے اور میرے شوہر کے لیے دعاؤں کی گزارش. اچھی بات ہے. ہارٹ پیشنٹ ہے اور چھوٹا بچہ ہے. جی. کچھ پڑھنے کے لیے ضرور ضرور صاحب سے کہہ رہی ہوں جی کہ میرے کو صبر آئے ہوئے تھا کچھ پڑھنے کے لیے. اچھی بات بولیے. جی اچھی بات ہے. کشتہ صاحبہ آپ کی گفتگو آپ کی بات ہمارے پاس محفوظ ہے. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں مفتی صاحب سے ضرور کہا جائے گا اور مفتی صاحب ضرور اس کا جواب بھی دیں گے. لیکن یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. میرے مولا کرم ہو کرم، زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم. کرم، زمین اور یہ
आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम। वरकातुहू नाज़रीन, 4TV के इस प्रोग्राम सहरी टाइम में वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। वक्फे से पहले हमारी एक बहन ने अपनी एक बेचैनी का इजहार किया था, उस सिलसिले में हम मुफ्ती साहब से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, मैं आसिफ नगर जीरे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब से जी, कि जो है सो तरावीह के लिए हमारे घर में 4 मेंबर है जी, मैं और मेरे 4 भाई और एक हमारे वालिद साहब। अच्छा, कोई भी हाफिज नहीं है हमारे पास, क्या हम तरावीह कुरान शरीफ देखकर पढ़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। मुफ्ती साहब, हमारी ख्वाहिश है कि पहले हमारी बहन जो बात की थी उनके मुतालिक बात किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, अल्लाह ताला आपकी वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन, और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। अब ज़ाहिर है कि औलाद और वालिदैन का जो कनेक्शन है, और ख़ास तौर पर माँ से औलाद को जो जज्बाती रिश्ता होता है वो कभी भी बेकरार कर देता है। इन हालात में अल्लामा इक़बाल की वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने जो मरसिया कहा वो बड़ा दर्दनाक मरसिया है। उन्होंने कहा था, खाके मरखत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। अल्लाह अकबर। मतलब ये कि अम्मी जान, आपकी कब्र पे आकर मैं ये फरियाद करूँगा कि आप जब तक थीं, आधी रात को जब भी दुआएं आप करती तो मुझे याद करती थीं, अब आप नहीं हैं तो आधी रात की दुआओं में मुझे याद करने वाला कौन रहा। तो ये एक जज्बाती ताल्लुक़ औलाद और माँ बाप का होता है। और भी उसके मुसलसल अशार हैं, खैर मैं उन अशार को नहीं सुनाऊंगा, अलबत्ता आपको तलखीन करता हूँ कि सब्र करें, इसलिए कि सब्र ही एक हकीकत है जिसकी तलखीन हमको की गई है, और महज जज्बाती होना उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं। उनका फ़ायदा इसमें है कि आप संजीदगी के साथ कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें और ईसाल सवाब करें। और आप अगर इत्मीनान के लिए कोई वजीफ़ा पढ़ना चाहती हैं तो या अल्लाह या लतीफ़ इस इरादे के साथ पढ़ें 280 मरतबा, या अल्लाह या लतीफ़ 280 मरतबा पढ़ें। आप महसूस करेंगी कि आपको क़रार आ गया है। आपके बच्चों के लिए भी हम दुआ करते हैं, आपके शौहर के लिए और तमाम लोगों के लिए अल्लाह सब पर अपना करम फरमाए। कुछ देर पहले हमारे भाई ने कॉल किया कुरान देख कर पढ़ने के बारे में। ज़ाहिर है कि वो लोग बरस से जो नमाज तरावी में कुरान सुनते थे उनका दिल बड़ा बेकरार और बेचैन है। आप तो पढ़ने वाले हैं, जो कुरान पढ़ाया करते थे महराब में वो कम अफसरदा नहीं हैं, सबके दिल बेकरार हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इन हालात में करना है तो क्या करना है। अल्लाह, हमारी मोहब्बत हमको इस बात के लिए बेकरार कर रही है कि याद नहीं है तो देख के पढ़ेंगे, ताहम हम कोई भी अमल अपने इख्तियार से नहीं कर सकते, हमको शरीयत के मुताबिक करना पड़ेगा। हम हनफी हैं और हमारे लिए
हुक्म यह है कि हम कुरान मजीद देख कर पढ़ेंगे अगर नमाज में तो हमारी नमाज टूट जाएगी। क्यों? उसकी दो वजूहात हैं। वो जो बयान करना चाहता हूं मैं वो ये कि नमाज की हालत में कोई अमल करना दुरुस्त नहीं है। अब नमाज की हालत में कितने अमल कर सकता है आदमी? दो अमल, या तो अमल कलील करेगा या अमल कसीर। अमल कलील का मतलब क्या है? आप खड़े हो हैं, क़ियाम की हालत में हैं, नमाज की हालत में आपने यूं किया, नमाज की हालत में आपने यूं किया, नमाज की हालत में एक आध मरतबा, जो भी आप ये जो अमल कर रहे हैं ये अमल कलील है। अमल कलील से नमाज नहीं टूटती, अलबत्ता अमल कसीर करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। अब कुरान मजीद देखकर पढ़ना अमल कलील है या अमल कसीर है? तो हमारे इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा की जो तशरीहात हैं, फ़िक़्ह हनफिया की जो तशरीहात हैं, उसके मुताबिक कुरान मजीद को देखकर पढ़ना अमल कसीर है। तो इसलिए आप कुरान मजीद देखकर पढ़ने के बजाय जो सूरह याद है वही पढ़िए। अब रही बात, कुरान नमाज तरावी तक महदूद नहीं है ना, कुरान तो गैर महदूद है। आप तरावी के बाद समाअत कुरान करिए, बैठिए, मोबाइल में किसी अच्छे कारी की कुरान लगाइए, सफ़ा खोलिए, सुनिए और अपनी नज़र को सतर से चलाते रहिए। तो ये कुरान मजीद चूँकि महदूद अमल नहीं है, गैर महदूद है, और नमाज तरावी की हद तक कुरान सिर्फ उस हद तक नहीं है ना, तो आप उसको दूसरे मौके पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यकीनन दिल बेकरार होगा, यकीनन ख्वाहिश है, लेकिन हमको इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए। जी, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की रूह से आप नमाज में कुरान पाक देकर नहीं पढ़ सकते, ऐसा बतलाया गया। और उससे पहले हमारी बहन ने जो बात की थी माँ के हवाले से, उसी हवाले से एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माँ क्या होती है, इसकी अक्कासी अशार में कुछ इस तरीके से की गई है कि मुझे माँ के आंचल का साया मिला है, उसी से मुक़द्दर संवरता गया है, ये दिल मेरा कदमों में तेरे झुका है, मेरी जान भी ये तुझी पर फिदा है माओं के कदमों के नीचे ही जन्नत, शरफ़िए हमें मुस्तफ़ा से मिला है। मेरी क्या खुशी है ये समझा ना कोई, मगर मेरी माँ ही को सब कुछ पता है। आइए इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, बात करते हैं, सवाल जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं बुलकपुर मशराबाद से अजहर बात कर रहा हूँ। जी अजहर साहब, सवाल बताइएगा। घर में माँ बाप भाई बहन नमाज पढ़ना चाह रहे तो किस तरह पढ़ना चाहिए? माँ बाप भाई बहन घर में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हम सब जन मिल। अच्छा ठीक है, जमात के साथ पढ़ना चाहते हैं। हाँ, सब में किस तरह पढ़ना चाहिए? सफ़े किस तरीके से होनी चाहिए आप जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। देखिए इस सिलसिले में मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, आप सब में कोई एक इमाम होगा तो इमाम आगे खड़े होगा, इमाम के पीछे मर्दों की सफ़ होगी, भाइयाँ हैं, वालिद हैं, जो भी लोग हैं वो मर्दों की सफ़ में होंगे, फिर उसके पीछे औरतों की सफ़ होगी। अब असल में ये जो घर में नमाज पढ़ी जाती है इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। एक इमाम है और एक ही मर्द है, माँ बाकी औरतें हैं। तो उसका तरीक़ा यह है कि इमाम तो अपनी जगह है, अब एक ही जो मर्द है वो इमाम के सीधी जानिब, इमाम की एड़ी के पीछे उसके पैर होंगे, यानी इमाम से थोड़ा सा पीछे रहे खड़ा होगा। वो अकेला मर्द है, वो पढ़ने वाला, तो इक़्तिदा करने वाला। अब उसके पीछे औरतों की सफ़ होगी, कहीं पर मर्द भी है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इमाम साहब के पीछे मर्दों की जमात होगी, उनके पीछे बच्चों की जमात होगी, उनके पीछे औरतों की जमात होगी। इस तरह से नमाज पढ़ी जाएगी। और अगर एक ही मर्द है एक ही औरत है, अभी हमारे भाई ने पूछा कि वो उनकी वालदा दोनों ही हैं, तो वो आगे खड़े रहेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, वालदा पीछे की सफ़ में खड़ी होगी। मियाँ बीवी है,
शौहर पढ़ा रहे हैं, शौहर सामने की सफ में, बीवी पीछे की सफ में। अच्छा, दो भाई पढ़ रहे हैं, खाली दोनों ही घर में पढ़ रहे हैं, एक भाई पढ़ा रहा है, दूसरा भाई इक्तदा कर रहा है। तो इसका तरीका यह होगा कि इमाम तो इमाम, उनके सीधी जानिब कुछ पीछे खड़े हो जाएंगे अकेले भाई, यानी सिर्फ दोनों ही है ना नमाज पढ़ने वाले, तो तन्हा आदमी इमाम से के सीधी जानिब उसके एड़ी से थोड़ा सा पीछे वो खड़ा रहेगा। अच्छा, इमाम और सिर्फ दो मर्द हैं, तो इमाम साहब सामने रहेंगे, उनके पीछे की सफ में ये दो मर्द खड़े होंगे। तो ये नमाज की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो घर में अदा की जाती हैं। मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जगह तंग होती है कि वहाँ पे सफ़े जब बनाई जाती हैं तो इमाम के पीछे ठहरने में दुश्वारी होती है, तो क्या एक सफ़ इमाम के करीब में हो सकती है, जैसा कि आपने एड़े के पीछे बतलाया है, वैसा क्या एक सफ़ वैसा बनाई जा सकती है? हाँ, अब अगर सफ़बंदी के लिए जगह नहीं है तो उज़्र की सूरत में ये बात भी दुरुस्त है कि इमाम सफ़ से आगे रहे, उसके ऐन पीछे एक सफ़ बना ली जाए, ये भी दुरुस्त है, इसकी भी इजाज़त है। जी, जज़ाकल्लाह। इस गुफ्तगू के बाद आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से? जी, मैं जामिया निज़ामिया से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे बहन? पूछना कुछ भी नहीं है, अनवर साहब को सलाम बोलिए। जी, और सवाल कुछ है आपके पास? हम जब से आप टीवी का ये चैनल देखते हैं, जब से कॉल लगाते नहीं लगता, आज लगा हम लोग को, जब लग ही गया तो सवाल भी बता दीजिए। कोई ऐसी बात पूछने के लिए नहीं करते। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपकी जो है नेक ख्वाहिशात बराबर हमारे साथ हैं, जज़ाकल्लाह। इस गुफ्तगू के बाद हम एक और कॉलर को शामिल करते हैं, क्या सवाल है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहन जामिया निज़ामिया बस्ती का नाम कह रही है। जी, जामिया निज़ामिया, क्योंकि जामिया निज़ामिया में कोई ख़वातीन होती ही नहीं है। जी जी, अब हमको वही महसूस कर लेना चाहिए कि उनका कहने का मकसद क्या है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से? हाँ, आपसे सवाल था हाफिज साहब। हाँ जी, हम सवाल ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की, जिसकी वजह से आवाज़ इको हो रही है। आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी अगर ऐसा रहा मामला तो। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं जो मौलाना से जरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि साहब है, सैयद है, मगर गरीब है, जरा मिस्कीन है, तो उनको ज़कात दे सकते क्या? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानवादे से निस्बत की वजह तमाम मुसलमानों के पास काबिल एहतराम हैं। ज़कात माल का मैल है और ज़ाहिर है कि ये माल का मैल सादात को नहीं दिया जा सकता, सादात को पाकीज़ा माल में से देंगे। आपके पास जो भी माल है 2.5% ज़कात दी जाती है, आप 1% का इजाफा कर लीजिए। वो रसूल जिनकी शफाअत के हम उम्मीदवार हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी हम जिनके उसवे पर गुजारते हैं, वो रसूल पाक अलैहि सलाम जिन्होंने हमें कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी से तारुफ करवाया, उस रसूल के ख़ानदान वालों से कम इतना तो हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए कि हम उनके ज़रूरतमंदों को 1% तय कर लें। हम सादात के लिए 1%, उतना भी नहीं कर सकते, 0.5%, साल में 0.5%, यानी 97% माल आपके पास ही है, 2.5% ज़कात में गया, 0.5% सादात के लिए पाकीज़ा माल। और अगर दिल और बड़ा करके 1% कर लें तो 1% भी इन सादात के हक़ में हमारे लिए एक बहुत बड़ी यानी एक मदद हो जाएगी। वो अपने कामकाज बेहतर तौर पर चला सकेंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुरखरू होने का ये बेहतरीन ज़रिया है। जिस तरह दरूद शरीफ पढ़ के हम
हुजूर के पास सुरखरू हो सकते हैं, वैसे ही सादात को कुछ अता करके, उनकी मदद करके, पाकीज़ा माल से उनकी ज़रूरतें पूरी करके भी हम कामयाब हो सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि 1% सादात के लिए मद मुकर्रर करिए, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस 1% के बदले आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाएंगे। और ये तजर्बा भी है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया, उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। जी मुफ्ती साहब, यहाँ पे इस हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये सवाल जो बार बार आ रहा है हमारे पास, उसके पीछे ये है कि मुख्तलिफ़ गोशों से बाज़ लोग इस बात की तरफ आगाही दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सादात को ज़कात के माल से ज़कात के माल से उनकी मदद की जा सकती है, और ये जो है जायज़ है। इस किस्म की बात अपने हिसाब से वो जो है तोड़ मोड़ के कुछ दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत मुस्लिमा का बड़ा तबका हक़ाइक़ से वाकिफ़ है। जी बेशक, ये चीज़ें कामयाब नहीं होगी। जो चीज़ हमें करना है वो तो हमको ज़रूर करना चाहिए। जी जी जी, बहुत ही सही बात कही है मुफ्ती साहब ने। आगे बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? जी मैं मोहम्मद गौस बोल रहा हूँ मुगलपुरे से। जी गौस साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी आज ये कोरोना वायरस के हिसाब से बहुत सारी जमातें घर पे हो रही है, मतलब जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमाम जो रहते हैं वो क्या नियत कैसी माने, इमाम साहब की नियत क्या होना चाहिए? अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम की नीयत ज़ाहिर है कि मुक़्तदी की नीयत से अलग नहीं होगी। वो भी नमाज की नीयत करेगा, मुक़्तदी भी नमाज की नीयत करते हैं। वो भी क़िबला रुख होगा, मुक़्तदी भी क़िबला रुख होते हैं। वो भी नमाज अल्लाह के लिए पढ़ता है, मुक़्तदी भी अल्लाह के लिए। ताहम इमाम की नीयत में ये बात शामिल होती है कि पढ़ाता हूँ, यानी अपने पीछे जो लोग हैं उनको वो शामिल कर लेता है, और यही बात है। और अच्छी बात है कि इस गोशे से कुछ नई बातें लोगों के कानों तक पड़ रही हैं। मैं समझता हूँ हमारे सहरी टाइम में 2 दिन, अभी ये दूसरा प्रोग्राम है, हाँ। और लोग मुख्तलिफ सवालात ऐसे कर रहे हैं जो साबिक में नहीं किए गए। बेशक सही है कि घर में जो जमात मुनाकिद होती है वो कैसी होगी, उसकी नौयत क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल आसान है मामला। अद्दीन युस्रुन, दीन तो आसान है। अब उस दीन पर हमको मेहनत भी करनी है, और उस सिलसिले में हम जिद्दोजहद करें, इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ें आसान। और इस कोरोना वायरस की वजह से एक चीज़ ये भी हो रही है मौलाना, कि लोगों में एक नया, एक बेहतरीन जज्बा उभरता हुआ महसूस हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक और कलर हमारे साथ है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से? साहब मैं वटापल्ली नाइट होटल से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरी शादी हुई परसों, 15-20 दिन हो रहा जी। मैं, मेरे घर पे मेरी वाइफ है जी, तो नमाज मेरे पीछे वाइफ पढ़ रहे हैं, वालिद तो हैं? नमाज उनकी फर्ज हो सकती है वहाँ पे? आपकी आवाज़ थोड़ा सा कट रही है। जी साहब, मैं नमाज मेरे पीछे वाइफ पढ़ रहे हैं मेरे, मैं मेरे वाइफ दोनों घर पे है जी, तो मैं फर्ज नमाज मेरी हो सकती है उनकी वहाँ पे? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि उम्र में वो बड़े हैं और आप छोटे हैं? हाँ, उन्होंने बड़े हैं उम्र में। जी, वालिद साहब हैं, कैसा भी जाहिर सी बात है। नहीं, हम दोनों अलग रहे। जी, वाइफ की बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपका सवाल वाज़ेह नहीं हो रहा मोहतरम। नहीं, फर्ज नमाज जो है जी, मेरे पीछे वाइफ पढ़ रहे हैं। वाइफ पढ़ रही हैं? हाँ। अच्छा, तो नमाज फर्ज ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब हम समझ चुके हैं आपका सवाल। आइए देखिए मुफ्ती साहब क्या कहते हैं इस सिलसिले में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, हम जो है शायद पहले नियत करा लें, टाइम हो चुका है। आइए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर हम अपने हाथों को खाने पीने से रोकते हैं और रोज़े की नियत करते हैं। नबैतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला मिन सौमी रमज़ान। नबैतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला मिन सौमी रमज़ान। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इस रोज़े की नियत को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، بات کرتے ہیں، سوال جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی وعلیکم السلام جی، محترم کون کہاں سے؟ میں ٹاپور رنگ روڈ سے بات کر رہا ہوں بھائی۔ ہاں جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آج کل یہ تراوی جو پڑھ رہے تو آن لائن فون میں لگا کے پڑھ رہے تراوی، تو یا گھر میں جماعت بنا لے گی ان کی آواز کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے، تو ایسا درست ہے کیا پڑھنا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بتاتے ہیں آپ کے سوال کا جواب بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم شریعت کے پابند ہیں۔ شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں۔ یہ بھی کیا تھا کہ ایک چھت پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، تو دوسرے گھر والوں نے کہا بیچ میں روڈ ہے کہ بھائی آپ لوگ ایسا کریے، میں وائر سے آڈیو سسٹم پاس کروا لیتا ہوں، وہاں کے امام صاحب وہ چھت پہ نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی آڈیو ہم کو آ جائے گی، ہم اقتدا کر لیں گے۔ جی، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ شریعت اپنے طریقے کے مطابق ہم کو پابند کرتی ہے، ہم شریعت کو پابند نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے قرآن غیر محدود ہے، قرآن مجید کو تراویح تک محدود مت رکھیے۔ اگر آپ تراویح میں قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں حافظ نہیں ہونے کی وجہ سے، جو صورتیں یاد ہے اتنا پڑھ لیجئے، پھر تراویح کے بعد آپ ہاتھ میں قرآن لیجئے، اب پڑھیے، تلاوت کریے۔ اور اچھے انداز میں آپ سننا چاہتے ہیں قرآن کو، اب موبائل پہ آواز قرآن کی لگائیے اور آپ حروف پر اپنی نظر جمائیے، سماعت کا ثواب بھی ہوگا، نظر کا ثواب بھی ہوگا۔ اور بہترین اسلوب میں جو آپ پڑھ نہیں سکتے وہ اسلوب آپ کو موبائل سے یا ٹی وی سے مل جائے گا۔ تو آپ اپنے دل میں اچھی خواہش ضرور رکھیے، لیکن شریعت کو، دین کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہرگز بھی نہ کریں۔ جی، تو نماز ایسے ہی ہوگی، نماز اپنی مرضی سے نہیں ہوگی ہرگز۔ اور دوسرا پہلے بھی سوال کیا گیا ایک، کیا ہے؟ وہ تراویح کی جماعت کے متعلق ہی تھا۔ اور دیکھیے تراویح کی جماعت کے بارے میں شوہر اور بیوی دونوں ہیں۔ شوہر آگے کی صف میں رہیں گے، سامنے کھڑے رہیں گے، نماز پڑھا رہے ہیں وہ، بیوی ان کے ٹھیک پیچھے کی صف میں رہے گی۔ اور نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے تو دل کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ شریعت میں اجازت ہے، آپ کی بیوی آپ کی اقتدا کر سکتی ہے، وہ پیچھے کی صف میں ہوگی، آپ کے بازو میں یا ذرا آپ کے پیچھے ایسا نہیں کھڑے گی، بالکل پیچھے کھڑے ہوگی وہ۔ جی، نماز تراویح سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، آئیے بات کرتے ہیں، سوال جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کہاں سے؟ جی، تہجد کا وقت کب تک ہوگا؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، سوال کا جواب مفتی صاحب دے رہے ہیں۔ جی میری بہن، جب تک سحر کا وقت باقی ہے تب تک تہجد کا وقت باقی ہے۔ تو آپ کے سامنے اب سحر، رمضان کی وجہ سے سہولت ہے کہ سحر کا ٹائم ٹیبل ہے، تو جب تک سحر کا وقت باقی ہے تہجد کا وقت تب تک باقی ہے۔ سماعت کیا آپ نے کہ جب تک سحر کا وقت ہے تب تک تہجد کا وقت بھی ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں، سوال کا معاملہ کیا ہے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کون کہاں سے؟ جی صاحب، میں حیدرآباد سے امجد حسین بات کر رہا ہوں۔ جی امجد حسین صاحب، کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی، زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال تھا میرا۔ جی ضرور بتلائیے۔ موجودہ صورتحال میں جو ہے تنخواہوں میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اور دوسری جانب جو ہے مکان کے کرایوں کی معافی کی بات بھی چل رہی ہے۔ جی، تو جو رقم کٹوتی میں ہو رہی ہے تنخواہوں میں، جی، اور جو کرائے کی معافی کی بات ہو رہی ہے، وہ رقم کو ہم کیا اپنی طرف سے زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں یا پھر الگ سے ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے؟ یہ مجھے پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا معاملہ آپ کی زندگی کے خرچ اور آمد کا معاملہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ 2.5% مال پر متعین ہے۔ اب آپ کے پاس کتنی کٹوتی ہو رہی ہے، کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے،
یہ ایک الگ حساب ہے. آپ کے پاس جو بھی مال ہے کٹوتی ہوئی تو ظاہر مال کم ہو کے آیا. شریعت نے ہر سال اس پر مقرر کیا ہے. اب گزشتہ سال آپ کے پاس 12 لاکھ کا حساب بن رہا تھا, اس سال یہ کٹوتی کی وجہ سے 11 لاکھ کا حساب بنا, تو اب زکوٰۃ کو سابق کے حساب سے 12 لاکھ پر آپ کو نہیں دینا ہے, 11 پر دینا ہے جی. تو معاملہ تو یہیں پہ سیٹ ہو گیا. اب رہی بات کرایہ دار مکاندار کا, جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی ہم گفتگو میں الجھے نہیں. آپ کے مکاندار خود معاف کر دیتے ہیں, بہت سے لوگوں نے معاف کر دیا ہے, اللہ توفیق دے دوسروں کو بھی, تو معاف کر دیا ہے تو وہ معاف ہو گئی بات. لیکن بعض مکانداروں نے کہا کہ نہیں اب نہیں لیں گے, بعد میں اقساط پہ لیں گے. جی ایسا بھی ہوا ہے. اب آپ کہیں گے ہم وہ زکوٰۃ میں دے دیے تھے, وہ کہیں گے نہیں آپ ہمارے کو ہم واپس دیجئے, چونکہ وہ جو اعلان ہوا ہے اس میں یہ بات ہے. تو یہ الجھن نہ رکھیے, جو بات ہے بالکل واضح کر لیجئے. آپ اپنی زکوٰۃ کو ان حالات سے جوڑیے مت, جو بن رہا ہے اس میں سے دیجئے. اور زکوٰۃ اقساط میں بھی دی جا سکتی ہے. فی الوقت حالات تنگ ہیں, آپ کی مجموعی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 50,000 کی بنتی ہے, 50,000 آپ کے پاس نہیں ہے, 25,000 اب دے دیجئے, باقی 25,000 اگلے مہینوں میں آہستہ آہستہ دیجئے. تو اس طرح سے معاملات کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح رکھیے. جی زکوٰۃ کے متعلق بہت ہی واضح انداز میں آپ نے سوال کا جواب ملاحظہ کیا. آپ کو بتا دیں ناظرین, اب یہاں پر سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب, نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ, اور آپ کے اس میزبان حافظ محمد وجیہ اللہ سبحانی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کر پھر 2:30 بجے شب ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اب وقت ہے ایک نعت پاک سماعت کرنے کا, سماعت کیجیے گا. اس کے بعد عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ کا خلاصہ سیرت والا پروگرام ریکارڈ کیا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اس کا بھی مشاہدہ کیجیے. خدا حافظ. الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
तेरे करम से हमें कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, तू नवाजने पे आए, तू नवाजने पे आए, तो नवाज दे ज़माना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही व मुहिब्बिही व ताबिईहिम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अजमाईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का खुलासा इस उन्वान से हम बयान कर रहे हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात में सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया और आपके नूर से इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया। और फिर इस कायनात में आपका ज़ुहूर, नूर की मुंतकिली, नूर की आमद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से होती हुई सैयदना आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला तक जब आपका नूर मुंतकिल होते हुए पहुंचा, फिर आप इस दुनिया के अंदर आपका नूर वजूद पाया और आप तशरीफ़ लाए। तो आपका ये सिलसिले नसब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत अब्दुल्ला तक पाक नसब है और आपके आबा अजदाद भी पाक से पाक तर, आपकी उम्महात भी पाक से पाक तर। ख़ुद आपने फरमाया कि मैं पाकीज़ा नसब से मुंतकिल होते हुए आया हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला जो आपके वालिद मोहतरम हैं और उनके वालिद का नाम है अब्दुल मुत्तलिब और उनके वालिद का नाम है हाशिम और उनके वालिद का नाम है अब्द मनाफ और उनके वालिद का नाम है कुसई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक हुआ सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई। ये कम से कम एक मुसलमान को हमारे आपके आबा अजदाद में इतना नसब तो याद रहना चाहिए। और आम तौर पर हमारे हैदराबाद के पुराने माहौल में इसको 4 कुर्सी से ताबीर करते थे और बच्चों को याद दिलाते थे। तो ये नसब आप अच्छी तरह से याद कर लें और बच्चों को भी अपने याद दिलाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक मुख्तसर सा जो 4 कुर्सी के नाम से मशहूर है, आप फिर उसको सुने। सैयदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ानदान कुरैश ख़ानदान कहलाता है। आप कुरैशी हैं। कुरैश ख़ानदान ये तमाम ख़ानदानों में दुनिया के अंदर ख़ासतौर पर अरब में बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम ख़ानदान था। लोग इसकी बहुत इज़्ज़त करते, ताज़ीम और तकरीम करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा अजदाद निहायत पाकीज़ा और आपका ख़ानदान बहुत पाक और
آپ کے والد محترم کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمائے، انا ابن الذبیحین، میں دو اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے، ذبح کیے جانے والوں کا فرزند ہوں۔ حضرت عبداللہ کا خاندان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کے نام سے یہ معروف اور مشہور ہیں، اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے سلسلے میں سیدنا عبداللہ آتے ہیں، اور پھر اسی سلسلے میں اور انہی کے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ حضور فرمائے کہ میں دو اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والوں کا فرزند ہوں۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں ذبح کیا تو اللہ نے ان کی جان بخشی کی، اور اس کے فدیے میں ایک دمبا جنت سے بھیجا گیا، اور دمبا ذبح ہوا اور آپ کی جان بخشی ہو گئی۔ اور دوسرے اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے آپ کے والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، وہ اللہ کے راستے میں ذبح کیے جانے والے تھے، اور ان کے والد عبد المطلب نے نظر مانی تھی، اور اس میں آپ کو ذبح کرنا طے کر دیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو آپ کسی وقت تفصیل سے پڑھیے اور سنیے اس کو، اور یہ وقت نہیں کہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد عبداللہ کی بھی جان بخشی کی، اور اس کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو یہ اس طرح سے 100 اونٹوں کا فدیہ ہوا اور آپ کی جان بخشی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی حالت بہت خراب تھی، اور اس قدر دنیا کی حالت خراب تھی کہ سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے کوئی دوسری صورت اصلاح کی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے ارشاد فرمایا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اس کو انشاءاللہ اب آئندہ پروگرام میں اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔